प्रोफेसर अनिल कुमार अग्रवाल, प्रोफेसर हादी हसन, चेयरमैन ग्रीन कमेटी, मेरे सहयोगी गण और विद्यार्थियों और अतिथियों, यह सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जल कुंडों के पुनरुद्धार के लिए, वाटर बॉडीज के रेस्टोरेशन के लिए काफी प्रमुख कार्य किए हैं ब्रजधाम में। अभी अभी हमारे बीच प्रोफेसर धनंजय पांडे जी आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। हम निवेदन करेंगे श्री विनीत नारायण जी से कि वो मंच पर आए, और मैं निवेदन करूंगा विनीत जी से कि मानवीय जी को माल्यार्पण करें। मैं अनुरोध करूंगा श्री अरमान सबके पुष्पगुच्छ के द्वारा श्री विनीत नारायण जी का स्वागत करें। Few months before, Indian Institute of Technology, Banaras Hindu University established an institute lecture series with an aim of educate to innovate and innovate to change. This lecture series has been established. I'll give you a brief summary about it, its intents and objectives and coverage areas. Pandit Madan Mohan Malviya, the illustrious founder of the Banaras Hindu University and pioneer of a degree-level engineering education in India, through the erstwhile engineering college, Benko, College of Technology, Techno and College of Mining Metallurgy, MINMET, had envisioned a holistic education for its graduates who would involve themselves lifelong in nation building with strong human values. The institute, even after being upgraded from ITBHU to Indian Institute of Technology, BHU Varanasi, is committed to maintain the same ethos. To this means, the institute has planned to organize institute lecture series as one of the courses. The lectures are meant to educate the thought process and the intellectual ecology within the institute for sensitizing the institute fraternity to the problems of the society, which in turn would kindle in them a quest for the search of their effective solutions. Lecture objectives are connecting faculty, students and staff to the world at large through a variety of perspectives on the national and international problems faced by the society. The lectures are intended to enable to align the pedagogy to societal problems. The coverage areas include science and technology primarily, energy, infrastructure, which includes transportation, irrigation, flood control, planning, economics, creativity, ethics and values, philosophy, education, societal roles, and health. Now I request Professor Anil Kumar Agrawal, sir, to kindly introduce the speaker. Professor Agrawal. Of course, maybe I was ignorant of Sri Vinit Narayan ji, his credential, his amount of work that he has done, maybe over a decade itself. I'm extremely sorry, but yes, he is very well known to Professor Dhananjay Pandey and many like him itself. So many of us would not be aware of him, so I'd like to introduce him. Sri Vinit Narayan ji, he is founder and past president of Foundation for Media Professionals and is also chairman of Brush Foundation. The good thing is, what I could learn back today itself, that this Brush Foundation, just over a decade of work, they have been in position to get maybe 2 best water NGO awards, and it was backed by UNESCO. And I'm also made to learn that they have also won Distinguished Water NGO Award for year 2012-13 for outstanding contribution in India. So that's something great. Like maybe yes, you deserve a lot of applause and appreciation for the same. So Vinit Narayan ji is also the foundation. He's, as I have already said, he's founder and past president of Foundation for Media Professionals, and through Kalchakra Samachar Trust, which is based at New Delhi, he reaches out to those national issues which are sidetracked by mainstream media. Let me tell you that maybe he was also instrumental in highlighting this Jain Hawala Khan and also the land scandal deal where maybe Chief Justice of India was also involved.
So his contribution to electronic media and international cause has been consistent for the last 3 decades. He has also been frequenting to various countries, maybe various forums. He had been speaking at press clubs, chambers of commerce, bar council, Rotary and Lions Club in Indian cities, and very prestigious professional bodies in India and abroad, like Silicon Valley and Alumni Association, various IITs he has touched. He has talked at a number of spiritual organizations also, and notable places where he has also talked, in Stanford, Purdue, Maryland, Oxford, and in Howard also he has talked. In addition to his journalistic pursuit, Mr. Narang is also actively involved in conservation of some 5,000 years old rich cultural and environmental heritage of Braj, the land of Lord Radhakrishnan. Probably we are going to see some of those taking back today itself. So Sri Vineet Narang has been very actively involved in restoration of cold water bodies in Braj region through his organization, the Braj Foundation, and he intends to share his experience in the conservation of water bodies so that the same may be utilized in cleaning Ganga at Varanasi. So his talk will be limited to restoration of ancient water bodies and what kind of lesson can we learn for cleaning Ganga over here. That's what we are going to listen from him. I invite Mr. Vineet Narang to deliver his talk. Thank you. I will stand to tell the audience that Sri Vineet Narang ji is the first, he carried out the first sting operation in the country, the father of sting. So slight correction. I am not confined to wound restoration only. I would like to give you a briefly holistic picture of how we approach the restoration of Braj, and you could read here that involves reviving of green cover, protection of the hill slopes, as well as in some way Yamuna also. And definitely with this august audience which has luminaries and academics and students who are so bright that they are in IIT, I expect that something concrete and practical comes out of this interaction. Maybe we can replicate our effort in Varanasi. So with this hope, I will take the liberty to addressing some more issues which may not be boring for you at all. You might find them interesting. So with your permission, I start my presentation. Well, as you know that India is a destination of tourism not for materialistic pleasure, but basically for spiritual solace, you know. So that's very important to understand when we touch places like Varanasi or Braj or Ajmer or Goa. Sorry. Almost 50 crore people come to Braj area annually. But the whole area was neglected for decades. There were ashrams and temples, but nobody was bothered about the overall development of Braj. As you know, Braj is the land of Sri Radha and Krishna, where Lord Krishna performed his transcendental pastimes. But it was in deplorable state, needed complete facelift. So in 2005 December, we established this foundation. Just for example, this was the ancient water body in Vrindavan called Brahmakund, where Lord Brahma did some penance and tendered apology to Balakrishna. But for last 100 years, heaps of garbage were being thrown into it by municipal carts and all. And we spent only 88 lakh rupees to make it what it looks like now. And in the night, it is illuminated with ornamental lights. And lots of cultural groups come and perform, including the singers from Europe and other places. Pandit Jasraj type of people, they all come, like to perform now. Something which was a heap of garbage has become a touristic destination in Vrindavan now. Most important aspect of restoration is the maintenance. If we restore and don't maintain, then the restored site comes back to its original position. And this is just an example that Brahmakund was inaugurated. I think I'll still prefer some more light switches to. So this is 4 years after its inauguration, and you can see the quality of maintenance. While all the projects which tourism department has done in Braj, within few months of their inauguration, they get converted into heap of garbage again. Somebody takes away the gate, somebody takes away the fence, भैंसें बन जाती हैं, गोबर के कंडे पकने लगते हैं, जुआ घर बन जाते हैं. So maintenance is very important. Braj is
Karnataka, and it has 3 states covered because Braj is a cultural zone. So Hodal Tehsil of Haryana, Deeg and Kama Tehsil of Rajasthan, and Mathura district of UP, that comprises of Braj. It covers 5,000 square kilometers, 1,300 villages. Out of them, 700 villages are ancient villages which one mentioned in Puranic literature. More than 1,000 ancient water bodies. If you heard the name of village called Nandgaon, Nandgaon is a village where Krishna lived with his foster father Nand Baba when he was very little. And this village had 85 water bodies. Today if you visit, you will only find 5 water bodies. And that is when the village has not been urbanized so far. So all the kunds have been encroached upon, they've been converted into agriculture field or housing, dwellings have come up. Similarly, there were 137 sacred groves, forests connected with the transcendental pastime of Radha and Krishna. 80,000 acres of hilly terrain where Krishna grazed cows, played flute, performed Ras Leela. These are the major tourist centers of Braj, Mathura, Vrindavan, Gokul, Baldev, Barsana, Nandgaon, Govardhan, Deeg, Kama and Hodal. Our key assets are water bodies, forests, heritage buildings and hills. Ours is a rural society. There is a saying in Braj, Saat Var No Tihar. There are 7 days in a week, but we have 9 festivals in a week. Every day is a day of festival. In Krishna's life, dancing, music, feasting, that's the only occupation Krishna and his devotees enjoy. More than 6,000 magnificent temples in Braj, 137 sacred forests, each connected with some or the other pastime of Radha and Krishna. Majestic landscape of hills, which is mainly in Rajasthan part. And these are these water bodies again. Every dance form of India, literature, music, painting, have a direct influence of Radha and Krishna. Whether it is Odissi, Kuchipudi, Kathak, Mohiniyattam, Kathakali, Manipuri, Garba. So we say Braj is the cultural capital of India. All the sacred hills mentioned in Indian scriptures are situated in Braj. You will wonder how Himalaya is in Braj, how Vindhyachal is in Braj, or Gandhamadhan, Trikut, Mena. All these hill ranges are in different parts of the country. But as per scriptures, hills are also a living entity. पर्वत भी एक योनि है और पर्वतों ने सतयुग में भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हम आपकी लीला देखना चाहते हैं. भगवान ने कहा लीला तो सिर्फ ग्वाले और गोपी देख सकते हैं, तुम ब्रज में आके पर्वत बन जाओ तो मैं तुम पर गौचारण करूंगा, वंशी वादन करूंगा, रास करूंगा, तो देख लेना. तो भारतीय उपमहाद्वीप के जितने पर्वत थे सब आके ब्रज में बस गए और इनका नाम पुराणों में आता है, ये ब्रज में बसे हुए. इन पर ही भगवान के चरण चिन्ह है. भागवत में वर्णन आया है कि जब भगवान वंशी बजाते थे तो प्रेमवश पर्वत पत्थर की तरह पिघल जाते थे और उनके चरणों के हाथ उन पर पड़ जाते थे. भारत में जितने तीर्थ हैं सबका रेप्लिका ब्रज में है. एक बार कृष्ण बलराम गौचारण करके लौटे तो आप में से सब हिंदी समझते हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं बिल्कुल. तो उन्होंने देखा कि तीर्थ यात्रा की तैयारी हो रही है, नंद बाबा, यशोदा मैया. तो हमारी ब्रज भाषा में वो बोलते हैं भैया जे का है वो लाला अब तू बड़ा हो गया, गैया चराए में जाए या हमारे हम नंद बाबा तीर्थ करने को जा रहे हैं, भारत के सबरे तीर्थन न करेंगे. भगवान ने कहा तुम यहाँ बुढ़ापे में तीर्थ करने क्यों जा रहे हो, मैं सबरे तीर्थन में ब्रज में बुलाए दो. तो उन्होंने वंशी बजाई और आपके काशी और प्रयागराज और रामेश्वरम सब उन लोग के ब्रज में आ गए. कहाँ क्या करना है, बोले आप ब्रज में वास करिए. तो तब से वो ब्रज में बसे हुए. हम लोग तीर्थ करने कहीं भारत में नहीं जाते. कार्तिक मास में 40 दिन नंगे पैर पैदल ब्रज में घूमते हैं और भारत के सब तीर्थों के दर्शन कर लेते हैं. ये भगवान की अन्य लीला स्थली पर्वतों पर, ये यमुना के घाट, जैसे आपके गंगा के घाट है यहाँ, 27 घाट तो यमुना के वृंदावन में थे. सब पर कोई ना कोई लीला हुई और उसी लीला के अनुसार उनका नाम है. ये था हमारा ग्लोरियस पास. अब मैं बहुत शॉर्ट में दिखाऊंगा. जब हमने काम करने का सोचा तो हमारे ब्रज की क्या दुर्दशा थी. जिन दिव्य पर्वतों का मैंने जिक्र किया उनको डायनामाइट लगाकर खान माफिया द्वारा रोज ब्लास्ट किया जा रहा था, जिसमें हजारों मोर, हिरन, पशु पक्षी मर रहे थे. हरा कवर खत्म हो रहा था, धूल हो रही थी. राजस्थान का रेगिस्तान ब्रज बढ़ा चला आ रहा था. बरसाना में एक विरक्त संत रमेश बाबा जो 46 साल से इन धरोहरों की रक्षा के लिए समर्पित रहे और उनका पंडित जी से बहुत ही गहरा नाता है.
हमारे बाबा का, वो करीब 80 साल के होंगे। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता एक पुलिस अफसर थे और शुक्ला जी, तो पंडित जी उनके घर आया करते थे और पंडित जी उनके पिताजी को पुलिस अफसर होने के बावजूद शुक्ल भगवान कहते थे और बाबा बालक थे, उनको गोद में खिलाते थे और तब कहा था कि ये बच्चा गृहस्थ जीवन में नहीं जाएगा, बहुत बड़ा संत बनेगा। बाबा 17 साल की उम्र में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पढ़ाई छोड़कर ब्रज भाग आए और एक जंगल की गुफा में 40 साल छुप के भजन करते हैं। बहुत अच्छा क्लासिकल गाते हैं, किसी को शिष्य नहीं बनाते और ब्रज के कुंड वन पर्वतों के लिए ही समर्पित है। उन्होंने भी ये प्रेरणा दी कि तुम भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ते रहोगे तो ना तुम्हारा लोक बनेगा ना परलोक बनेगा, क्योंकि नाली को जितना साफ करो कचरा ही आता है। ये ब्रज भूमि जो है भगवान का साक्षात शरीर है, इसको सजाओ तो तुमको लोक में भी आनंद होगा। पर उन्हीं की प्रेरणा से ये काम 2002 में शुरू किया। तो लड़ाई लड़ी हमने, इसकी बाद में दिखाएंगे। 1000 वाटर बॉडीज थी ब्रज में, 1000 से अधिक कुंड थे। जब मैंने कार्यक्रम शुरू किया तो कई सारे IIT खड़गपुर के, दिल्ली के, रुड़की के स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट नहीं, जो लोग बीटेक एमटेक कर चुके थे, वो नौजवान मेरे साथ जुड़े। बहुत थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पर, 15,000 20,000 महीने पर, और 5 साल तक लगातार उन लोगों ने घूम घूम के ब्रज की धरोहरों की अध्ययन किया, इनका डॉक्यूमेंटेशन किया। तो हमको पता चला कि 1000 से ज्यादा एंशिएंट वाटर बॉडीज ब्रज में थी, जो 80% लगभग समाप्त हो चुकी। ये दशा कुंडों की थी, कूड़े के ढेर, नाले गिर रहे, खंडर हो गए बिल्कुल। इसी तरह कृष्णकालीन जो 137 वन थे, उसमें से मात्र 3 वन बचे। उनमें से भी 2 वन का रेस्टोरेशन ब्रज फाउंडेशन ने किया। सब वनों में धूल उड़ती है, पेड़ नहीं बना। यमुना क्या उसकी दुर्दशा बताई जाए, अपनी सहनशीलता से 10 मिलियन ज्यादा, मतलब 1 करोड़ गुना वो प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली के ताजेवाला बैरियर के बाद उस पर यमुना जल नहीं आता। ब्रज में जो यमुना में जल है वो दिल्ली का सीवरेज डिस्पोजल है। ये ब्रज में यमुना की हालत। उसके किनारे के घाटों पर कब्जे कर लिए गए, निर्माण कर लिए गए। भक्त लोग करोड़ों रुपया मंदिरों पर खर्च करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि भगवान राधा कृष्ण की कोई लीला ब्रज के किसी मंदिर, आश्रम, गेस्ट हाउस में नहीं हुई। ये कहां उनकी लीला है? ये तो ब्रज के जंगलों में, यमुना किनारे, कुंडों पर और वनों में होती। भागवत के दशम स्कंद के 24वें अध्याय का 24वां श्लोक है, न पुरो जनपदा न ग्रामा ग्रहावयम नित्यम मनोक्षता वन शैल निवासिना। बालकृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कि नंद बाबा, हम शहरन के रहने वाले ना हैं, हमारा घर तो ब्रज के पर्वतों और वनन में, पर्वत और वन के रहने वाले हम लोग हैं। भगवान पहले पर्यावरणविद थे, माटी खा के माटी तत्व का शोधन किया, कालिया दमन करके जल तत्व का किया, दावानल पान करके अग्नि तत्व का किया, तृणावत का वध करके वायु तत्व का किया और व्योमासुर को मार के आकाश। 5 तत्वों की शुद्धि की भगवान ने। तो जो भी राधा कृष्ण के भक्त हैं, उनसे हमारी प्रार्थना होती है कि कॉन्क्रीटाइजेशन मत करो ब्रज का, ब्रज के इन नैसर्गिक प्राकृतिक तत्वों की शुद्धि में सहयोग लो। गोवर्धन धारण करके भगवान ने यही संदेश दिया। अब रास्ता क्या था? रास्ता था, हमने तय किया कि हम सभी कुंडों का जीर्णोद्धार करेंगे। कोई साधन नहीं थे हमारे पास, सिर्फ इच्छा थी। 137 वनों का रिवाइवल करेंगे, पर्वतों को माफिया से बचाएंगे, यमुना की खुदाई करके उसमें जल लाएंगे, हेरिटेज भवनों का पुनर्निर्माण करेंगे, जीर्णोद्धार, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे और अपना पारंपरिक तीर्थाटन का आधारभूत ढांचा विकसित करेंगे। बहुत एम्बिशियस लक्ष्य रखे थे बिना साधन के, लेकिन अब आप यात्रा देखेंगे आगे इसमें क्या उपलब्धि। ये हमारी फाउंडर्स की टीम है, अपना पढ़ सकते। आगे चलिए। ये हमारी एग्जीक्यूटिव टीम है। आगे चलिए। ये हमारा ओरिजिनल जो लक्ष्य था कि पहले हम कुंड, वन, पर्वत और यमुना को देखेंगे और फिर उससे संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का, कॉटेज इंडस्ट्री और फिर पूरे ब्रज का। इन संस्थाओं ने हमारी आर्थिक मदद करी इस अभियान में। सीधे सरकार से और विदेशों से हमने कोई पैसा आज तक नहीं लिया। अब तक 46 कुंडों का जीर्णोद्धार कर चुके हैं 2005 दिसंबर के बाद से। 2 वनों का रिवाइवल हो चुका है, 4 पर काम चल रहा है। पहाड़ों की रक्षा की लंबी लड़ाई लड़कर हम जीत चुके हैं।
पहली बार ब्रज की पर्यटन मास्टर प्लानिंग हमने की, 2000 करोड़ का प्लान बना के गवर्नमेंट को दिया है, उन्हीं के कहने पर जिस पर काम चल रहा है। 3 हेरिटेज बिल्डिंग्स का रेस्टोरेशन हुआ है। पूरे ब्रज के कल्चर को और ऑडियोविजुअल डॉक्यूमेंटेशन करके सीरियल्स और फिल्में बनाई हैं। हमारे यहाँ पानी का बहुत संकट है पीने का, उसका भी काम किया है। और IIT के छात्रों ने, प्रोफेसर्स ने सहयोग करके बहुत भारी साइंटिफिक सर्वे ब्रज का हमारे लिए किया है। और हमने दुनिया भर में इस तरह की प्रस्तुतियां करके ब्रज के बारे में चेतना फैलाने का प्रयास किया है। 9 बड़े ब्रज महोत्सव किए हैं हमने। अगर आप लोग चाहें तो अगला ब्रज महोत्सव BHU में कर सकते हैं। बड़ा आनंद आता है, पूरा ब्रज उठ के चला आता है। मैंने कलाकार से लेके पाक शास्त्री तक 200-250 लोग आएंगे और 2 दिन पूरा आपके BHU को ब्रज बना देंगे। तो आपका इच्छा होगी तो ये भी कभी कर सकते हैं। और यूपी गवर्नमेंट से 2 कानून पास करवाए ब्रज के कुंड और वनों की रक्षा के लिए। कुंड रेस्टोरेशन, जिसमें आपकी रुचि अग्रवाल साहब ने कहा कि तरीका क्या है। अभी बात हो रही थी दुर्गा कुंड ले लेते हैं। सबसे पहली जरूरत है कि उस कुंड की परिधि में रहने वाला जो समुदाय है उसके साथ हमारा संवाद हो, उनको ये बात समझ में आए कि इस कुंड का क्या महत्व है और उस कुंड का जीर्णोद्धार किया जाना है, तब काम आगे बढ़ता है। दूसरा, फिर जो भी प्रशासनिक अनुमति वगैरह होती है, फिर उस साइट का सर्वे जो कि आपके यहाँ का जो सिविल इंजीनियरिंग विभाग है वो कर सकता है। फिर उसकी डिटेल रेस्टोरेशन प्लान, जिसमें आर्किटेक्चरल प्लान, लैंडस्केपिंग प्लान, हाइड्रोलॉजिकल प्लान, स्ट्रक्चरल प्लान और उसका ऑर्नामेंटेशन वगैरह। उसके बाद उसकी कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग के बाद अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाए, इतना काम तो वॉलंटरी करना पड़ता है लोगों को। उसके बाद कॉस्टिंग के बाद अगर स्पॉन्सर मिल जाए तो फिर रेस्टोरेशन शुरू करते हैं। अगर गंदा पानी है तो गंदा पानी निकालते हैं, सिल्ट है तो सिल्ट निकालते हैं, घाटों की रिपेयर करते हैं और तब तक खोदते हैं जब तक कि एक्वाफायर्स नहीं खुल जाए, नीचे के भूजल स्रोत न खुले। तो कोई कुंड तो 10 फुट खोदने से पानी आ जाता है और कोई 35 फुट खोदने से भी पानी नहीं आता। तो अभी तक तो लगभग 46 में से 45 कुंडों में पूरी सफलता मिली है। एक कुंड में पानी आने के बाद सूख गया इसलिए कि उसके चारों तरफ जो लोग रहते थे उन्होंने बहुत सारे बोरवेल बना रखे थे और 20 साल बाद अचानक कुंड में पानी देखकर वो अभिभूत हो गए और इतने उनके बोरवेल चल पड़े कि वो 1 महीने में फिर खाली हो गए। तो अभी दोबारा हमने उस पर हाथ नहीं लगाया है, लेकिन बाकी सारे कुंडों में लगातार पानी है। तो ये हमारी प्रक्रिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लिस्टिंग ऑफ साइट, सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस, रेवेन्यू मैप एनालिसिस, फिजिकल लैंड सर्वे, हाइड्रोलॉजिकल प्लान, आर्किटेक्चरल प्लान। ये जो गूगल मैप आप देख रहे हैं इसमें जो राइट हैंड साइड को लहरती लाइन दिखी वो यमुना नदी है और जितने व्हाइट स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारी टीम ने खोज के निकाले हैं। ब्रज के लुप्त हो गए कुंड, उनके नाम भी लिखे हुए हैं नीचे वो विस्तार से। तो इनको खोजा, जो लुप्त हो गए उनको भी खोजा जाए, भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर उनको रेस्टोर किया जा सके। ये उन कुंडों की सूची है जिनको रेस्टोर किया। केवल सूची नहीं, आपको चित्रों के माध्यम से काम दिखाएंगे। ये गोमती गंगा, इस पर करीब 40 लाख हमने खर्च किया। कुंड का नाम है गोमती गंगा, कोसी में एक खंडर पड़ा था पूरे कटे, अब इसको ऐसा बनाने की योजना है। ये शिवताल मथुरा, इसको भी डिसिल्टिंग किया। ये हरियाणा के होडल पार्ट में वंचारी कुंड, इसको खोदा। ये बरसाना में रूप सरोवर है जहाँ राधा रानी रात को स्नान करके रूप बदल के लास्ट में प्रवेश करती हैं। इस कुंड का लास्ट रेस्टोरेशन 500 साल पहले अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने किया था। आप पहला चित्र देखिए, कोई कुंड का नामो निशान नहीं, फ्लैट जमीन पड़ गई, लेकिन खुदाई करी तो कुंड भी निकला और भूजल स्रोत खुल गए और उसमें जल आ गया। इसी तरह अंजनी कुंड, इसमें लोग गाँव वाले बताते हैं कि 35 साल से एक बूंद पानी नहीं था, लेकिन इसकी खुदाई करीब 1.5-2 साल चली। कई एकड़ का ये कुंड है और ये पूरा पानी से लबालब है। ये जल महल बरसाना का खंडर हो गया था। ये 1215 का स्ट्रक्चर है, इसका हमने रेस्टोरेशन किया और मात्र 35 लाख रुपए में ये रेस्टोरेशन और डिसेलिंग करी आज से 10 साल पहले और फिर ये तैयार हो गया। और इसको पॉपुलर करने के लिए हमने वहां सालाना बरसाना महोत्सव चालू किया। ये वो गोविंद कुंड जिसके बारे में बता रहा था कि जो पानी आके सूख गया क्योंकि चारों तरफ के लोगों ने इसका पानी खींच लिया। ये जयकुंड जहाँ भगवान ने रासुर नाम के अजगर रूपी राक्षस को मारा था और उसके मारने की खुशी में जो भगवान कृष्ण का जय घोष किया ब्रजवासियों ने, उस जय घोष की ध्वनि से ये कुंड क्रिएट हुआ। ये मैदान बन गया था, इसको खोद के हमने पूरा जलाशय बना दिया। और जो कालिया के ऊपर भगवान ने नृत्य किया था ना, कालिया मर्दन यमुना में, तो उस कालिया को भगवान मारना चाहते थे। तो उसकी पत्नियों ने कहा कि हमारे पति को मारिए मत, अभय दान कीजिए। भगवान ने कहा कि तू कालिया ब्रज वृंदावन छोड़ के चला जा, और मुड़कर देखा तो पत्थर का हो जाएगा। तो कालिया
कालिया भागा चला गया और ये जयकुंड के पास आके उसने मुड़ के देखा तो पत्थर का हो गया। तो ये जो आप कोने में देख रहे हैं, नाक दिख रहा है चबूतरे के अंदर, दिख रहा है कोई नाक छोटा सा, तो ये कहते हैं कि वही कालिया नाग है 5000 साल से जो पत्थर का बना। और दुनिया भर के भक्त तीर्थ यात्री संत आते हैं। मंदिर बहुत ही अनइम्प्रेसिव सा था। हमने इसका पूरा रेस्टोरेशन का प्लान बनाया। ये हमारा प्लान है, एंट्री थिएटर, गेट, ये कुंड का पूरा डायनामास, घाट वगैरह, और इस पर हमारा काम चल रहा है पिछले 4-5 महीने से। इसकी बाउंड्री वॉल बन रही है, उसके बाद ये प्लांटेशन हो रहा है इसमें अजय वन में। ये हमने, वो कहते हैं कि वृंदावन तक उस सांप का शरीर चला गया पत्थर का, तो हमने खुदाई की। जो आप ऊपर काला काला हिस्सा देख रहे हो ना टॉप का, ये तो वो है जो बगल वाले मंदिर में आपको दिख रहा है। पर जब हमने और गहरी खुदाई करी तो वाकई नीचे सांप का शरीर निकलता चला गया। जो गुलाबी गुलाबी रंग आप देख रहे हैं, ये खुदाई में निकला शरीर है। और वो बोलते हैं कि आप खोदेंगे तो पूरा वृंदावन तक आपको शरीर सांप की पूरी दिखाई देगी। तो अब इतना तो खोदा नहीं है, पर ये अष्टकोणीय मंदिर का निर्माण उसका करा है। जहां भी हम साइट डेवलप कर रहे हैं वहां कैंप ऑफिस जरूर बनाते हैं। उस कैंप ऑफिस में 2 पार्टीशन में डिवाइडेड कमरा रहता है, जिसमें हमारा एक पढ़ा लिखा नौजवान कोई केयर टेकर, एक उसका ऑफिस जैसा, किचन, बाथरूम, ताकि उस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस हो सके। अगर आप बना के छोड़ देंगे तो फिर क्या मेंटेनेंस? पेड़ों को पानी देना है, शाम को गेट बंद करने हैं, सुबह खेलने हैं, तीर्थ यात्रियों को गाइड करना है, सुबह शाम गांव के नौजवानों को प्रेरणा देनी है, उनको एजुकेशनल काउंसलिंग गाइडेंस करनी है। हमें ऐसे बहुत लोगों की जरूरत है, और खासकर रिटायर्ड लोग जो अकेले रहना चाहते हो, उनको हम ब्रज की लीला स्थलियों के अलग अलग ऐसे क्वार्टर, अब ये समझिए 20 एकड़ की प्रॉपर्टी है, वन है, कुंड है, कोई अर्बनाइजेशन आसपास नहीं है। अब इस कॉटेज में रह के आदमी अध्ययन भजन कर सकता है आराम से। तो अभी हम लोग हर लीला स्थली पर एक एक कैंप ऑफिस इस तरह बनाते जा रहे हैं। ये एक और बरसाना में दोहनी कुंड है, जहाँ राधा रानी गायों का दूध धोती थी। तो भगवान कृष्ण ने एक दिन शरारत की और दूध धोते धोते थल से धार राधा रानी के मुंह पे डाल दी, और वो उसके दूध से कुंड भर गया। ये भी लॉस्ट इन विल्डरनेस था। इसका भी हमने 2003 में रेस्टोरेशन किया, और आज इसका ये स्वरूप तैयार है। ये ब्रह्मकुंड वृंदावन का जो दिखाया आपको पहले भी। चंद्र सरोवर चौमा गांव में एक और ये भी मैदान बन गया था। पट्टे कट गए थे, पट्टे कैंसिल कराए, गांव को अपने साथ जोड़ा, महिलाओं को जोड़ा, घाट बन चुके हैं, और ये स्वरूप इसका बनने की तैयारी में है। दूसरा एक और मथुरा ऑयल रिफाइनरी के पास कृष्ण सरोवर, जहां भगवान ने धेनुकासुर को मार के गौ हत्या के पाप से बचने के लिए स्नान किया था, मैदान बन गया था, जैसा आप नीचे बाईं ओर पिक्चर में देख रहे हैं। इसकी खुदाई करी, पूरा जल से भर गया। जल्दी में 2 पिक्चर लगाएंगे, जब प्रक्रिया दिखाएंगे तो एक कुंड के खोदने की अवधि 6 महीने से 3 साल तक होती है, क्योंकि हर बारिश में काम रोक देना पड़ता है। फिर बारिश जब खत्म हो जाती है तो पानी निकालना पड़ता है, फिर उसको सुखाना पड़ता है कुंड में, फिर खुदाई चालू होती है। और जैसा मैंने निवेदन किया कि जब तक जल स्रोत नहीं खुल जाते तब तक हम खोदते रहते हैं। दूसरी समस्या क्या है कि जितना भी कैचमेंट एरिया है वो सब पर कब्जे हो गए हैं। जो कैनाल्स आती थी उनको कब्जा, तो वो एक बड़ी भारी समस्या हो गई है। ग्रीनरी कवर कम हो गया है, उसके कारण ही पानी की कमी है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक सफलता मिली है। ये इसका नक्शा, इस पर काम होने जा रहा है। ये रुद्रकुंड गोवर्धन पर्वत के कोने में है, भगवान शिव के नाम पर, और इसमें इसके साथ ही एक सुंदर कथा जुड़ी हुई है कि जब भगवान बालकृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो सारे देवी देवता उस लीला का दर्शन करने आए कि एक 7 वर्ष का बालक 11 किलोमीटर का पर्वत अपनी कनिष्ठ उंगली को उठाए हुए। तो भोलेनाथ जल्दी जल्दी कैलाश पर्वत से भागने लगे गोवर्धन आने के लिए। तो पार्वती जी भी उनके पीछे चल पड़ी, और गणेश, कार्तिक और प्रसिद्ध शिव जी के गांव, तो सब आ गए। पर यहाँ आकर बैठकर भोलेनाथ ने उस लीला का दर्शन किया, और उस लीला का दर्शन करते हुए शिव जी की आंखों से जो जल गिरा, अश्रुपात हुआ, उससे कुंड बना, क्योंकि लव और एक्सटेसी में जो उनके आंसू गिरे, इसलिए इसका नाम रुद्र कुंड है। अब यहाँ कृष्ण और शिव का मिलन हुआ है, हरि और हर का मिलन हुआ है। हमारा आर्किटेक्ट जो है, जो भी आया था दशाश्वमेध घाट का अध्ययन करने, यंग मैन आप लोगों की तरह 30-32 साल का, स्कॉटलैंड से टॉप किया आर्किटेक्चर में, वो बड़ा आध्यात्मिक है। 4-5 घंटे वो साधना करता है, शास्त्रों की, भगवान की सेवा पूजा। अभी भी 2:30 बजे उनके विश्वनाथ जी के मंदिर में चला जाता है, 8 बजे तक अभिषेक उसमें। उसकी खास बात क्या है, वैसे तो करीब 150 आर्किटेक्टों से काम करवा चुका हूँ पेश के जाने वाले, पर मुझे खासकर सुबोध मोहंती जो है ये बहुत प्रिय है, क्योंकि ये हर लीला स्थली की आध्यात्मिक गहराई में जाता है और उसके अनुसार नक्शा बनाता है। ये नहीं कि कुछ भी मन में आया। तो जैसे रुद्रकुंड का नक्शा बनाना था,
तो उसने क्या सजेस्ट किया कि हम रुद्र यंत्र के साथ तो कुंड बनाएंगे। और भगवान गीता में कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं जल का स्वाद हूं। तो जल क्या हो गया? भगवान कृष्ण हो गए। भगवान कहते हैं ना वृक्षों में वट हूं, नागों में तक्षक हूं, मनुष्यों में राजा हूं, तो नक्षत्रों में सूर्य हूं, तो मैं जल का स्वाद हूं, भगवान कहते हैं। तो जल का रूप हो गया भगवान कृष्ण। और इस तरह इसने नक्शा बनाया। हमने पहले यहाँ अवैध निर्माण हटाए, 5 साल मुकदमा लड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद में, उसके बाद उसकी डीसिल्टिंग करी, उसके बाद यहाँ पर वो नाले गिरते थे उनको डाइवर्ट करवाया, फेंसिंग करी, और उसके बाद इसका ये नक्शा बना के दिया सूरज ने शिव यंत्र के अनुसार। उस पर निर्माण चला और अब इसका ये स्वरूप बनकर तैयार हो गया। इसके ये बनकर ऐसा हो जाएगा। यहाँ आपको एक निमंत्रण भी दे दें, हम अपने प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन नेताओं से नहीं कराकर किसी देव विग्रह से कराते हैं। जैसे ब्रह्म का उद्घाटन करने जयपुर से गोविंद देव जी आए थे, 500 जयपुर के संभ्रांत नागरिकों के साथ नाचते गाते। रुद्र कुंड का इन्विटेशन हम लेने आए काशी विश्वनाथ जी को। विश्वनाथ जी के साथ पूरी ट्रेन एक सचल विग्रह के रूप में, चित्र रूप में आप लेके आएंगे और सब बनारस वासियों का मथुरा स्टेशन पे हम स्वागत करेंगे और वहां से फिर आपको गोवर्धन ले जाएंगे और वहां गोवर्धन परिक्रमा कराएंगे और वहां रुद्र कुंड का उद्घाटन भोलेनाथ वो 5000 साल पहले लीला देखने आए थे और आप स्वयं आकर उद्घाटन करेंगे। तो ये न्योता है हमारे देव भट्टाचार्य जी वगैरह जो आपकी सलाहकार समिति में ये लोग आयोजक हैं, शीतल प्रसाद जैन जी वगैरह, शांति प्रसाद जैन जी, ये लोग सब व्यवस्था बनाएंगे। शायद अगले महीने उद्घाटन की स्थिति पैदा हो जाए, काम करीब करीब खत्म हो गया है। तो आप सबको निमंत्रण है, एक विशेष रेलगाड़ी आएगी बनारस से मथुरा, आप आए, बारात सा स्वागत होगा आपका, आपको आनंद आएगा। ये एक और गोवर्धन परिक्रमा में संकर्षक कुंड जो नाले गिरते थे इसमें सारे, बहुत मुश्किल थी। सबसे मुश्किल खुदाई अग्रवाल जी इसी कुंड की थी, क्योंकि इसमें सीवरेज जमा थी कि हमारी मशीनें इसमें बार बार धंस जाती थी और उनको निकालने के लिए क्रेन बनानी पड़ती थी। आप देख सकते किस तरह की कीचड़, इतनी सॉफ्ट जमीन पर जेसीबीज नहीं चल सकती, लेकिन बहुत मुश्किल से इसकी खुदाई हुई और इंक्रोचमेंट के इश्यूज भी बहुत थे। यहाँ इसकी भी फेंसिंग की गई, घाट बनाए गए और अभी इसका ये स्वरूप हो चुका है। लेकिन अगले 6-8 महीने में ये ऐसा हो जाएगा। पीछे गोवर्धन पर्वत, 25 फुट की विशाल संकर्षण भगवान का विग्रह, चारों तरफ परिक्रमा मार्ग और वृक्षारोपण, और लागत मात्र 2.5 करोड़ रुपया। ये यशोदा कुंड नंदगांव में, जहाँ यशोदा मैया बालकृष्ण को निलाती थी, खंडर पड़ा था, इसका भी निर्माण किया, इसके घाटों का निर्माण किया, ये तैयार हो गया। ये बहुत अद्भुत कुंड मिला है, मेटलर्जी वालों को रुचि होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में। ये वृंदावन के पास एक रामताल नाम का गांव है, वहां कोई ताल जैसी चीज थी नहीं। हम लोगों ने बहुत खोजा, मिलता नहीं था ताल, फिर कुछ अंदाजा लगा तो खुदाई शुरू करी। खुदाई में 2500 साल पुराना कुंड निकला और उससे भी ज्यादा अद्भुत बात यह कि उस कुंड की नींव में लोहे की प्लेटें लगी हुई। और वो लोहे की प्लेटें जो हैं वो एक अद्भुत बात है, क्योंकि ना तो ब्रज के आसपास कोई लोहे की खान है और ना तब साले में स्टील प्लांट या दुर्गापुर या भिलाई स्टील प्लांट था। इतनी मोटी 1 इंच मोटी लोहे की चादर, इसमें जंग भी नहीं लगी, वो कैसे फाउंडेशन के नीचे लगी। और ईंट भी वो मोहनजोदाड़ो टाइप बड़े बड़े साइज के हैं। तो अंदाजा ही लगाया गया, चूंकि यमुना के किनारे कुंड है, यमुना विशाल नदी रही होगी, तो उसके सीपेज से कुंड की दीवारें ना हिल जाए, इसलिए उन्होंने गला के लोहा, मोल्डेड आयरन शायद डाला हुआ। इसकी खबर इतनी एक्साइटिंग लगी मीडिया को कि सब भाग के, ये दीवार आप देख रहे हैं खुदाई को निकली है कुंड की, तो सब बड़े बड़े अखबारों में आकर इस पर हाफ पेज स्टोरीज करी। लेकिन अभी हम लोग को इसका वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर पाए। मेटलर्जी वाले अगर चाहें तो हम उसके लोहे के कुछ टुकड़े भेज सकते हैं आपके अध्ययन के लिए। कोई कहता है 2000 साल पुराना है, कोई 2700 साल, कुछ ऐसा फिगर आर्कियोलॉजी वाले बता रहे हैं। पानी भर गया इसमें, लेकिन अभी इसका ब्यूटिफिकेशन करना है। हमारा इक्विपमेंट है, ये सब हमारे नौजवान IIT से पढ़े हुए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके इन कामों में लगे और इसी तरह वनों के रेस्टोरेशन का काम किया। 137 वन में से सभी वन ऑलमोस्ट गायब हो चुके थे, धूल उड़ती थी। इनका साइंटिफिक सर्वे किया, एक के डेवलपमेंट प्लान बनाए, ये पूरे 137 वनों को आइडेंटिफाई किया ब्रज में कहाँ है। और अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, संरक्षित वन का स्वरूप देखिए, और वो भी राधा रानी का वन,
और वो वन जिसका भागवत में वर्णन आया है। और इस वन के बारे में दुआ है कि गहवर वन के वास की आस करें से विशेष, या की महिमा को कहे या शाम धरे सखी वेश। इस वन में एक रात रहने के लिए ब्रह्मा जी और शिव जी लाइन लगाए खड़े रहते हैं। उनकी क्या चले, हमारे प्यारे श्याम सुंदर कृष्ण को भी छद्म रूप से सखी बनकर घूंघट करके सखियों के झुंड में घुसना पड़ता है, बिकॉज दिस इज द प्राइवेट स्टेट ऑफ राधा रानी। Only Radha Rani and her Sakhis can enter in this village. That is the glory of this forest. And yet you see the protected forest was in such pathetic condition. What we did? We only spent 18 lakh rupees. We did fencing, we did pathways, we did drip irrigation, benches, tourist infrastructure, diagram of the Leela, and some plaque to describe the glory of this good. This is the tourist infrastructure created. This is inside the forest. This is the diagram. Similarly, now we are restoring Seva Kund Vrindavan. I think next end of this month, January, this will be inaugurated. Again, we have spent about 1.5 crores on this project. You see the chhatris, how they were, what we have made them to now. Mr. Ajay Piramal, who is here, is the one who has committed financial support for the restoration of the Shashwat Ghat. He is a regular supporter. आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण का यमुना से क्या रिश्ता है? कोई बता सकता है? पंडित जी आप बताइएगा, आपको पता होगा। कोई बताए यमुना जी का बोले अपने बाल कृष्ण से क्या रिश्ता? पत्नी पटरानी होती। तो जब जन्माष्टमी की रात वसुदेव जी छाछ में लेके चले तो यमुना जी अपने पति को आता देख उनके चरण छूने के लिए चढ़ने लगे। तो वसुदेव जी घबरा गए कि मेरा, हमारे ब्रज में बेटा को लाला कहते हैं और लड़की को लाली कहते हैं, मेरा लाला डूब जाएगा, चिल्ला ले कोई आके मेरे लाला को संभाल ले। अब भगवान समझ के मेरे पिता घबरा रहे हैं, उन्होंने अपने टांग नीचे लटका दी बाल कृष्ण, यमुना जी ने उनके चरण स्पर्श किया, लौट गए। अब जन्माष्टमी तो पूरी दुनिया मनाती है, लेकिन कोयले घाट, उसका नाम कोयले घाट है, कोयले घाट का रेस्टोरेशन करने को किसी ने कभी नहीं सोचा था। ये हालत थी कोयले घाट की। और सामने गोकुल है, बाएं को मथुरा है और दाहिने को यमुना जी आगरा की तरफ चली जाती है। बड़ा दिव्य स्थान है, इतना दर्शनीय स्थल है यमुना दर्शन का कि औरंगजेब ने यहाँ अपना ख्वाबगाह बनाया जो भी खंडर पड़ा हुआ है। तो इसका हमने निर्माण किया और इसमें 8 फुट के वसुदेव जी बालकृष्ण को लेकर जाते हुए उनका भी स्थापना की, सीबीसी ने इनॉग्रेट किया इसको आके। जब बरसात में बाढ़ आई और वसुदेव जी कमर तक यमुना में डूब गए, उस रात तो किसी ने नहीं देखा था, 5000 साल पहले अंधेरी रात में गए थे, पर ये सबने देखा। तो सारा मीडिया दौड़ के पहुंचा और बोले द्वापर का नजारा देखने को मिला, ये वसुदेव जी गोकुल जा रहे हैं और कमर तक यमुना में डूबे हुए हैं। इसी तरह ब्रज के जो दिव्य पर्वत है उन पर खान माफिया द्वारा अवैध खनन चल रहा था, इसके खिलाफ हमने नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद और IIT रुड़की से अध्ययन करवाया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने PIL करी, चिपको आंदोलन की तरह मास मूवमेंट किया, मीडिया में मैनेजमेंट किया, पार्लियामेंट में असेंबली में शोर मचवाया और 2 मेरे वॉलंटियर्स की हत्या कर दी माफिया ने। और एक दिन जब मैं उस इलाके में घूम रहा था अपने मित्रों के साथ तो मेरी पूरी गाड़ी को पत्थर और लाठियों से मार के चकनाचूर कर दिया। दिसंबर का महीना था यही, और 30 किलोमीटर तक स्कॉर्पियो में मेरे पीछे बुलेट्स फायरिंग करते हुए दौड़े माफिया, हमारे आगे दौड़ते गए, टूटी कार, सब शीशे टूटे हुए थे। और जब यूपी में प्रवेश कर गए राजस्थान में तब वो लोग उल्टे लौटे। आखिर में मुख्यमंत्री के साथ रात भर नेगोशिएट करके वो अध्यादेश जारी करवाया और वहां की माइनिंग बंद करवाई। अब इन पर्वतों को हरा भरा बनाने के लिए हम पहाड़ों पर गड्ढे खोद रहे हैं, गधों से खाद डाल रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन पहुंचा रहे हैं और धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि इनको फिर से हरा भरा बनाया जाए। इसकी ये स्टैटिस्टिक्स है, क्या खर्चा आएगा, इससे कितना चारा मिलेगा, उससे दूध का संकट दूर होगा, हरियाली आएगी, पर्यावरण सुधरेगा, ब्रज का वाटर टेबल ऊंचा होगा, तीर्थाटन के नए स्थान बनेंगे और ब्रज को अपना पुराना वैभव देखने को मिलेगा। इलिनॉय यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट का रुड़की IIT के साथ मिलकर गोवर्धन के परिक्रमा के डेवलपमेंट की हमने स्टडी करी और डेवलपमेंट प्लान बनाया उसका, जिसको यूपी गवर्नमेंट को सबमिट किया है परिक्रमा का, किस तरह इसको डेवलप किया जाना है। 85% ग्राउंड वाटर खारा है ब्रज में, तो मीठे पानी का पहुंचाना, आप लोगों को रुचि आएगी सुनने में, वो एक हमारे दुआ चलता है, एक दिना गोपाल की गई सिठल्ली भूल, काबुल में मेवा करी और ब्रज में टैंटी शूल।
भगवान की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी एक दिन। काबुल में तो मेवा कर दी और ब्रज में कटीले कांटे और खारा पानी। तो क्यों कहते खारा पानी क्यों किया? भगवान बड़े चालाक थे, नौजवानों को सुनकर मजा आएगा। बोले अगर मीठा पानी घर में मिलेगा तो गोपी घर से निकलेंगी कैसे, तो मैं चढ़ूंगा कैसे? खारा पानी होगा तो दूर पानी भरने जाएंगी तो मुझे चढ़ने को मौका मिलेगा। एक कहानी। तीसरी कहानी, जब भगवान ब्रज छोड़ के द्वारका चले गए तो उनके विरह में तो ब्रजवासी रोए, उनके आंसुओं से ब्रज का पानी खराब हो गया। कुल मिला के कहें 85% पानी खाए। असली बात ये नहीं, असली बात ये है कि ब्रज इतना हरा भरा था, इतने सरोवर थे, इतने कुंज थे कि बताते हैं कि नरम नरम घास, सुगंधित पुष्पमालाओं, हवा सुगंध आती हुई, हमेशा नमी रहती थी, ऐसा वर्णन साहित्य में आता है। लेकिन अभी ब्रज बिल्कुल उठा हो चुका है, बहुत बुरी हालत है। 85% ग्राउंड वाटर सैलाइन है, उसलिए हमको ड्रिंकिंग वाटर का भी प्रयास करना पड़ रहा है गाँव गाँव। ब्रज की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम ब्रज महोत्सव करते हैं। सबसे पहली बार जब हमने 2005 में भारत के सभी कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, विजिलेंस कमिश्नर्स सबको बुला के सीबीएसई इनके सामने किया ऑफिसर्स को, तो सबका कहना था, दे ऑल गेव स्टैंडिंग ओवेशन, कि हम लोग इतनी बार ब्रज गए पर जो दिग्दर्शन आपने ब्रज का कराया हमको पहले कभी नहीं हुआ। तो उसके बाद से हम लगातार इन लोगों को एजुकेट करने के लिए इस तरह के महोत्सव जगह जगह करते रहते हैं। आंध्र प्रदेश, लखनऊ, कैलकाटा, जयपुर, और अगर IIT BHU चाहेगा तो बढ़िया महोत्सव यहाँ बनारस में भी किया जाएगा। हमारे ब्रज में 800 मुसलमान कृष्ण भक्त हुए। अगर आपने सुना हो, ताज बेगम थी, अकबर की बेगम, उनकी नौकरानी जो थी वो गोकुल की थी, वो बाल कृष्ण की भक्त थी। तो वो देखती थी, बड़े भाव से भोग लगाती है, श्रृंगार करती है। तो कहती कौन है तुमकी, क्या सेवा करती है? बोले बाल कृष्ण। बोले कहाँ रहते हैं? गोकुल में रहते हैं। मुझे गोकुल ले चल। नहीं, बादशाह सलामत नाराज होंगे। नहीं तू ले चल। हाथी घोड़े पालती में आ गई और गोकुल आई, तभी लौट कर ही नहीं ताज पर झोपड़ी बना के रह गई। और लिखती है, नंद के दुलाल कुर्बान तेरी सूरत पे, मैं हूं तो मुगलानी हिंदुआनी और रहूंगी मैं। नजीर अकबराबादी कहते, क्या क्या कहूं मैं तुमसे कन्हैया का बालपन, कैसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। तो हमने तय किया कि जो 800 मुसलमान कृष्ण भक्त हुए हैं, सांप्रदायिक सद्भाव कहने से नहीं हुआ करता, ये तो हृदय भावना से होता है। उनकी पोइट्री का एक वन बनाया जाए शिलालेखों, और लोग आए और उसको पढ़े और जाने कि हमारे यहाँ ऐसे कोई वैमनस्य की परंपरा नहीं रही। एक और बड़ी अद्भुत घटना है कि अकबर ने अपने मनसबदार तानसेन से कहा, तानसेन आप इतना बढ़िया गाते हैं संजय जी, तो आपके उस्ताद तो और भी बढ़िया गाते होंगे। तानसेन के उस्ताद थे स्वामी हरिदास, जो वृंदावन के निधि वन में भजन करते थे 500 वर्ष पहले। उनके 2 मशहूर चेले हुए हैं, स्वामी हरिदास जी के, एक तानसेन और एक बैजू बाबा। तो तानसेन ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे उस्ताद का क्या जवाब, बहुत ऊंचा गाते, हमको उनका गाना सुनना है। नूर गुस्ताखी माफ हो, मेरे उस्ताद शहंशाहों के लिए नहीं गाते। क्या मतलब? हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हमारे लिए नहीं गाएंगे तो किसके लिए गाएंगे? बोले उस्ताद सरकार हो तो शहंशाहों के शहंशाह के लिए गाते हैं, खुदा के लिए गाते हैं। तो बोले आपने तुम्हारी प्यास और बढ़ा दी, अब तो हमको जरूर उनका सुनना पड़ेगा। बोले गुस्ताखी माफ हो तो एक तजवीज करूं, बताइए। आपको मेरा खादिम बन के चलना पड़ेगा। खादिम बने मेरा चपरासी बन के। अकबर ने कहा मंजूर है। तो अकबर अपनी पूरे लाव लश्कर के साथ वृंदावन आए। वृंदावन के आउटस्कर्ट्स पर एक गांव है जिसका नाम बनमाली था, वहां एक बनमाली कुंड भी था। वहां अकबर ने अपना लाव लश्कर रोका, अपनी रॉयल रोब्स उतारी, ज्वेलरी उतारी, और एक काला कंबल लपेट के तानसेन का तानपुरा हाथ में लेकर तानसेन के पीछे पीछे जंगल के रास्ते निधिवन पहुंचे। स्वामी जी अपना एक तारा लिए लंगोट पहने गा रहे थे। गाते गाते जब गाना रुका तो अकबर ने कहा, सुभान अल्लाह, क्या गाया है। स्वामी जी के मुंह से निकल गया, बोला हो तो बादशाह अकबर। बोले जी स्वामी जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो एक अलग कहानी है। तो उस अकबरपुर गांव को मैंने चुना है कि मैं अकबरपुर संत बीथिका बनाने जा रहा हूँ, और उसमें इन सब मुस्लिम संतों की जीवनी और इनके के शिलालेख रहेंगे। उसका प्रयोग शुरू किया ब्रज महोत्सव में, कि जिस भी जगह ब्रज महोत्सव करते हैं उस जगह के कव्वालों को हम उन मुस्लिम संतों की रचनाएं पहले भेज देते हैं, उनसे कहते हैं आप अपने स्टाइल में, कव्वाली स्टाइल में ये रचनाएं हैं। तो जैसे हैदराबाद में साबरी ब्रदर्स गा रहे हैं, जगह जगह लोगों को ये प्रस्तुति दिखाते हैं, जैसे आपको दिखाई। उत्तर प्रदेश का मास्टर प्लान ब्रज का हमने बनाया, उसकी सब मीटिंग चलती रहती है इनके साथ सचिवालय।
कई राज्यों के राजदूत वगैरह हमारे दिल्ली ऑफिस में आके इसे देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं काम को। राजभवनों में सुधा नारायण मूर्ति बैठी है ऑरेंज साड़ी में, इन्फोसिस की। इसी तरह गांव-गांव में दिखाते हैं ब्रज में जाके, ताकि ब्रजवासी अपनी धरोहरों के प्रति गर्व महसूस करें और बजाय उनको कब्जा करने के, पहाड़ तोड़ने के, पेड़ काटने के, उनकी रक्षा के लिए सामने आए। ब्रजवासियों को हमने ट्रेन किया ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन में, और उनसे फिल्में तैयार करवाई और उनका प्रसारण चैनलों पे किया, ताकि लोग इसके बारे में जाने। जैसा मैंने बताया मास्टर प्लानिंग की, तो जितने हमने लक्ष्य रखे थे पिछले 9 साल में, इनके कुछ को स्पर्श कर पाए हैं। और ये हमारा दिल्ली कार्यालय जो वृंदावन की गायों के गोबर से बना, दिल्ली आरती के सामने दीवार पर कृष्णलीला के चित्र हैं। इसको लोग ब्रज का सांस्कृतिक दूतावास कहते हैं, वृंदावन कार्यालय। ये वो सब जिनके विषय मैंने बताया, इनकी प्रेरणा से काम शुरू किया। धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो विषय आपका संबंध का? देखिए, जो यहाँ कोई मीडिया वाले भी हैं, प्रेस वाले तो नहीं है, मीडिया नहीं, ठीक है, बढ़िया। क्योंकि हम अभी मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हम कुछ बातें जरा संवेदनशील होती हैं, इसलिए पब्लिकली नहीं कह सकते। हुआ ये कि हमारे जैसे कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, उनमें पीरामल ग्रुप भी है, अजय पीरामल मित्र हैं। तो पीरामल जी की मोदी भाई से बातचीत हुई। मोदी जी हमारे काम के बारे में अच्छे से जानते हैं, बहुत कई सालों से हमारा उनसे स्पेशल वार्ता चल रही। तो उन्होंने कहा कि आप दशाश्वमेध घाट का रेस्टोरेशन करिए, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो पूरा पैसा पीरामल जी देंगे या भारत सरकार भी देगी, और कितना लगेगा इसका भी अंदाजा नहीं। 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, कुछ भी लग सकता है। तो ये हुआ कि इसका प्रोजेक्ट पहले बना लिया जाए। तो हम लोग आए थे पिछले हफ्ते 2 दिन के लिए अपनी टेक्निकल टीम को लेके प्रीलिमिनरी सर्वे करने के लिए, और उसके बाद हमने जाकर एक कंसेप्चुअल डीपीआर पीएमओ को भेजी, जो उनको बहुत पसंद आई। 24 घंटे बना के दी थी। तो उन्होंने कहा कि आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब तक दे सकते हैं। हमने 1 महीने का समय लिया है, लेकिन 1 महीने में हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। उस पर काम कर रहे हैं। आजकल हमारी टीम आई हुई है, और जो दोनों जो दशाश्वमेध घाट है, यानी शीतला माता मंदिर से लाले प्रसाद, उसका पूरा रेस्टोरेशन, यानी बैकड्रॉप में जो प्राइवेट इमारतों से लेकर नावों तक का पूरा फसाड चेंज करने की बात है। एक समरूपता, एक सौंदर्य, प्रैक्टिकलिटी, फंक्शनल वायबिलिटी, ये सारी चीजें देखते हो, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब जब सबमिट कर देंगे, तब उसके बाद क्या भारत सरकार के पैसे से बनेगा, कौन बनाएगा, दूसरे लोग बनाएंगे, हमको बनाना है, पीरामल ग्रुप बनाएगा, ये सब अभी कुछ तय नहीं, इसलिए कुछ घोषणा हम नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के लिए आए हुए हैं। वो प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा फरवरी में कि क्या होगा। मुझे बताना चाहते थे कि काशी में कुछ स्थान ऐसे हैं जो पौराणिक आख्यानों से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर रामेश्वरम करके स्थान है, तो सेतुबंध रामेश्वरम के लिए है वो, और वरुणा नदी के किनारे है। वहाँ पर कुछ पुराने मंदिर है, पांचों शिवाला करके स्थान है वहाँ पर। उसी जो कि बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञात नहीं है, और जिनका जीर्णोद्धार और उनके संवर्धन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से यहाँ से नजदीक एक स्थान कंदवा है, कर्दमेश्वर महादेव का मंदिर है। वो कर्दमेश्वर जो मंदिर है वो काशी विश्वनाथ से पुराना है, विश्वेश्वर से पुराना मंदिर है। इसी प्रकार से दूसरा एक है शूल टंकेश्वर करके निकट हिंदू विश्वविद्यालय का स्थान है, जो अश्वत्थामा काल का मंदिर है। और उसके अगल बगल और भी सारी चीजें हो सकती है। देख के लगता है कि वहाँ और भी कुछ था। वहाँ पर भी एक कोई विदेश की संस्था है, किरण करके, उन लोगों ने कोई बना रखा है, वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अवध गैरी है शहर में, बहुत सारे सभी जितने हमारे पौराणिक स्थल हैं देश में, उनसे संबंधित स्थान हैं। तो अगर ये तो मैं जानता हूँ कि बचपन से हम लोग सुने इसलिए जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके सांस्कृतिक आख्यान, इनकी ऐतिहासिक व्याख्या, ये सब चीजें उपलब्ध हो कहीं पर। तो अगर ये आपको मिल सके और इसके लिए आप कुछ सलाह दे सके, जो भी संस्थाएं इसके लिए करती हूँ। पहली चीज, संगत साहब आ गए हैं, उनके सामने में एक निवेदन के रूप में प्रस्ताव रखना चाहूँ। जिस तरह IIT रुड़की और IIT दिल्ली काफी दिनों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य वाराणसी में आके खुद कुछ करने का नहीं है। हम जो भी सलाह दे पाएंगे, जो थोड़ा बहुत हमारी बुद्धि है, आप लोगों की तरह हम कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, फील्ड एक्सपीरियंस पूरा फील्ड में काम किया, तो हम वो देने के लिए तत्पर हैं। और इनिशिएटिव तो वाराणसी को लेना पड़ेगा, वाराणसी के लोगों को लेना पड़ेगा। आप लोग लें,
लेकिन एक MOU हम साइन कर सकते हैं ब्रज फाउंडेशन और IIT PHU, जिसके तहत हम लोग अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करें और कार्यक्रमों को सहयोग से चलाएं। जहां तक आपने इन पौराणिक धरोहरों की बात की, इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ जरूर हुआ होगा, इंटेक वगैरह ने किया होगा। अब जरूरत देखिए, जो बात अगर आप हम सेल्फ प्रेज ना करें, विनम्रता से बात रखें, हमने सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, कोई प्रोजेक्ट बना के नहीं दिया, हमने बाहर से भी पैसा नहीं लिया, सिर्फ एक इच्छा शक्ति के साथ चले संत कृपा से और अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके लोगों को काम करके दिखाए। शुरू में जो लोग 25 लाख का चेक देते थे पहली मीटिंग में, वो फिर 1 करोड़ का देने लगे, अब 10 करोड़ का देने लगे। तो मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कहा जाकर कृपा राम की हुई, आप पर कृपा करें सब कोई, ठाकुर जी कृपा हो गई तो फिर क्या काम रुकना है। तो आप योजना बनाइए, योजना की मार्केटिंग करी जाएगी और मार्केटिंग, इस देश में रहने वालों की कमी नहीं है। पीरामल परिवार ने ही लंका में जाकर वो सारे पहाड़ खरीद लिए हैं जिसमें भगवान राम, रावण, सीता ये सब लीलाएं हुई, सारे पहाड़ खरीद लिए। मैं जाने वाला हूँ देखने, उनको डेवलप कर रहे हैं इस वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह से। तो लोग हैं इस देश में जिनको रुचि है, जब आप उनके सामने जाएंगे प्रस्ताव देंगे तो एकदम दौड़ के आएगी मदद करने की। सर, एक हम लोग का एक्सपीरियंस है, मामूल इलाके में एक तालाब है, प्राचीन कुंड है, और उसका जिक्र भी है बचपन के पहले का जो खसरा खतौनी है। तो कई लोग मिलकर हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि उस कुंड को बचाया जाए। अचानक एक दिन उस पर चारदीवारी बनने लगती है, हाई कोर्ट में फिर केस डाला जाता है, हाई कोर्ट के से केस हम लोग जीत के आते हैं, और उसमें क्या पता चलता है कि अचानक लेकिन खसरा खतौनी में उसका एरिया 680 स्क्वायर कितना था, एयर 680 एयर का एरिया अचानक 140 एयर हो जाता है। जो स्क्वायर कुंड था अचानक वो एल शेप का कुंड हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, अभी आपको मैंने दिखाया ब्रह्मकुंड, जो कि कूड़े का ढेर था, जिसमें चारों तरफ अवैध निर्माण थे। उसमें हम कोई अवैध निर्माण नहीं हटा सके, जितना कुंड मिला उसी को बना दिया। दूसरा दिखाया रुद्रकुंड, जहाँ 5 साल हाईकोर्ट में लड़े, डिमोलिशन किया। तीसरा दिखाया जयकुंड, जहाँ पर वो नाग का दिखाया, आधा कुंड का गाँव बढ़ जाया था, उसको बड़ी मुश्किल से पीछे हटाया, पत्थर गोली चले, हमारे लोगों के सिर फूटे, पुलिस वालों के सिर फूटे। और जो मैं अकबरपुर संत रीतिका की बात कह रहा हूँ, बिल्कुल वही घटना हुई जो आप कह रहे हैं। बगल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसने पूरे कुंड की बाउंड्री वॉल बनाई, SDM की मिली भगत, खसरे खतौनी रिकॉर्ड में कुंड गायब हो गए। पर हमारे रिलीफ के लिए क्या था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड पुराने तो हैं। HF ग्राउस नाम का एक अंग्रेज कलेक्टर मथुरा में हुआ है, जिसने रेस्टोरेशन के काम 1886 में किए थे। उसने किताब लिखी मथुरा में माया, उसमें अकबर का ताल नाम से उसके पर 6 पेज है फोटोग्राफ। तो हमने DM से कहा कि भाई जो चीज हिस्टोरिक है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कुंड सन 50 की दशा में लौटाई जाए, तो ये कैसे दीवार पर? SDM की मिली भगत कोऑपरेट ही नहीं कर रहा, अभी तक पूरी सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन ये पता चल गया है कि सारे फोर्ज डॉक्यूमेंट है। अब जब हमारे हाथ में सबूत लग जाता है तो हम भूत की तरह पीछे पड़ जाते हैं, चाहे कितने महीने लगे। अब वो पूरा है, उसको वापस करवाइए। जयकुंड में इसी तरह मैनिपुलेशन करके एक बहुत बड़ी जमीन जो जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 200 करोड़ होगी, उसको उन्होंने शमशान में कन्वर्ट कर दिया, शमशान कागजों में दर्ज कर दिया। सिर्फ पर्पस क्या था कि भविष्य में वहां पे दुकानें बाजार बन जाए। 5 साल लड़ाई लड़ने के बाद 4 दिन पहले वो शमशान निरस्त कराया और वो जयकुंड हाईवे से लगी जमीन में। ये परसिस्टेंट लड़ाई लड़नी पड़ती। हवाला की लड़ाई लड़ी थी जब 93 में 115 देश के मंत्री, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट के खिलाफ। तो मेरे वकील राम जेठमलानी कहते थे, विनीत जिंदगी का अनुभव है, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हमने कहा आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, देखते भगवान को क्या मंजूर है। आप जानते इतिहास से चाहिए। न्यायपालिका से लड़ा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घोटाले उजागर किए। एक वकील, एक पत्रकार, एक सांसद मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ के साथ। अकेला लड़ा, 1.5 साल अंडरग्राउंड रहा, दफ्तर सील कर दिया, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट श्रीनगर में चलाई, कश्मीर में, मुझे देश छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन आखिर में मैंने माफी नहीं मांगी कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार है, मौजूदा कानून उससे निपटने के लिए नाकाफी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रमाण है तो आप लड़ाई में जुट जाइए। वो एक वजह नहीं है कि जो आपको भी चला।
वाले भी हैं, प्रेस वाले तो नहीं है ना? मीडिया नहीं। ठीक है, बढ़िया। क्योंकि हम अभी मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पर हम कुछ बातें जरा संवेदनशील होती हैं, इसलिए पब्लिकली नहीं कह सकते। हुआ ये कि हमारे जैसे कॉर्पोरेट पार्टनर्स हैं, उनमें पीरामल ग्रुप भी है, अजय पीरामल मित्र हैं। तो पीरामल जी की मोदी जी हमारे काम के बारे में अच्छे से जानते हैं, बहुत कई सालों से हमारा उनसे स्पेशल वार्ता चल रही है। तो उन्होंने कहा कि आप प्रशासनिक घाट का रेस्टोरेशन करिए, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वो पूरा पैसा पीरामल जी देंगे या भारत सरकार भी देगी, और कितना लगेगा इसका भी अंदाजा नहीं। 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, कुछ भी लग सकता है। तो ये हुआ कि इसका प्रोजेक्ट पहले बना लिया जाए। तो हम लोग आए थे पिछले हफ्ते 2 दिन के लिए अपनी टेक्निकल टीम को लेके प्रीलिमिनरी सर्वे करने के लिए, और उसके बाद हमने जाकर एक कंसेप्चुअल डीपीआर भी हम लोग को भेजी, जो उनको बहुत पसंद आई। 24 घंटे बना के दी थी। तो उन्होंने कहा कि आप डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब तक दे सकते हैं। हमने 1 महीने का समय लिया है, लेकिन 1 महीने में हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। उस पर काम कर रहे हैं, आजकल हमारी टीम आई हुई है। और जो दोनों जो दशाश्वमेध घाट है, यानी शीतला माता मंदिर से लाले प्रसाद, उसका पूरा रेस्टोरेशन, यानी बैकड्रॉप में जो प्राइवेट इमारतों से लेकर नावों तक का पूरा फसाड चेंज करने की बात है। एक समरूपता, एक सौंदर्य, प्रैक्टिकलिटी, फंक्शनल वायबिलिटी, ये सारी चीजें देखते हुए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अब जब सबमिट कर देंगे तब उसके बाद क्या भारत सरकार के पैसे से बनेगा, कौन बनाएगा, दूसरे लोग बनाएंगे, हमको बनाना है, पीरामल ग्रुप बनाएगा, ये सब अभी कुछ तय नहीं, इसलिए कुछ घोषणा हम नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के लिए आए हुए हैं। वो प्रोजेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा फरवरी में कि क्या होगा। वो ये बताना चाहते थे कि काशी में कुछ स्थान ऐसे हैं जो पौराणिक आख्यानों से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर रामेश्वरम करके स्थान है, तो सेतुबंध रामेश्वरम के लिए है वो, और वरुणा नदी के किनारे है। वहाँ पर कुछ पुराने मंदिर है, पांचों शिवाला करके स्थान है वहाँ पर। उसी जो कि बहुत ज्यादा लोगों को ज्ञात नहीं है और जिनका जीर्णोद्धार और उनके संवर्धन की आवश्यकता है। इसी प्रकार से यहाँ से नजदीक एक स्थान कंदवा है, वहाँ कर्दमेश्वर महादेव का मंदिर है। वो कर्दमेश्वर जो मंदिर है वो काशी विश्वनाथ से पुराना है, विश्वेश्वर से पुराना मंदिर है। इसी प्रकार से दूसरा एक शूल टंकेश्वर करके निकट हिंदू विश्वविद्यालय का स्थान है, जो अश्वत्थामा काल का मंदिर है। और उसके अगल बगल और भी सारी चीजें हो सकती है, देख के लगता है कि वहाँ और भी कुछ था। वहाँ पर यदि एक कोई विदेश की संस्था है, किरण करके, उन लोगों ने कोई बना रखा है, वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अवध गए भी है शहर में। बहुत सारे सभी जितने हमारे पौराणिक स्थल हैं देश में, उनसे संबंधित स्थान हैं। तो अगर ये तो मैं जानता हूँ कि बचपन से हम लोग सुने इसलिए जानते हैं, लेकिन हो सकता है कि इनके सांस्कृतिक आख्यान, इनकी ऐतिहासिक व्याख्या, ये सब चीजें उपलब्ध हो गई। तो अगर ये आपको मिल सके और इसके लिए आप कुछ सलाह दे सके, जो भी संस्थाएं इसके लिए करती हूँ। पहली चीज, साहब आ गए हैं, उनके सामने में एक निवेदन के रूप में प्रस्ताव रखना चाहूँ। जिस तरह IIT रुड़की और IIT दिल्ली काफी दिनों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य वाराणसी में आके खुद कुछ करने का नहीं है। हम जो भी सलाह दे पाएंगे, जो थोड़ा बहुत हमारी बुद्धि है, आप लोगों की तरह हम कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, फील्ड एक्सपीरियंस पूरा है, फील्ड में काम किया, तो हम वो देने के लिए तत्पर हैं। और इनिशिएटिव तो वाराणसी को लेना पड़ेगा, वाराणसी के लोगों को लेना पड़ेगा। आप लोग लें, लेकिन एक MOU हम साइन कर सकते हैं ब्रेथ फाउंडेशन और IIT PHU, जिसके तहत हम लोग अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करें और कार्यक्रमों को सहयोग से चलाएं। जहां तक आपने इन पौराणिक धरोहरों की बात की, इसका डॉक्यूमेंटेशन यहाँ जरूर हुआ होगा, इंटेक वगैरह ने किया होगा। अब जरूरत देखिए, जो बात अगर आप हम सेल्फ प्रेज ना करें, विनम्रता से बात रखें, हमने सरकार से कोई पैसा नहीं लिया, कोई प्रोजेक्ट बना के नहीं दिया, हमने बाहर से भी पैसा नहीं लिया, सिर्फ एक इच्छा शक्ति के साथ चले संत कृपा से, और अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके लोगों को काम करके दिखाए। शुरू में जो लोग 25 लाख का चेक देते थे पहली मीटिंग में, वो फिर 1 करोड़ का देने लगे, अब 10 करोड़ का देने लगे। तो मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, मगर लोग मिलते रहे और कहा जाकर कृपा राम की हुई, आपने कृपा करे, सब कोई ठाकुर जी कृपा हो गई, तो फिर क्या काम रुकना। तो आप योजना बनाइए, योजना की मार्केटिंग करी जाएगी, और मार्केटिंग इस देश में देने वालों की कमी नहीं। पीरामल परिवार ने ही लंका में जाकर वो सारे पहाड़ खरीद लिए हैं जिसमें भगवान राम, रावण, सीता, सब लीलाएं हुई, सारे पहाड़ खरीद लिए, बजाने वालों देखें, उनको डेवलप कर रहे हैं इस वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह से।
तो लोग हैं इस देश में जिनको रुचि है, जब आप उनके सामने जाएंगे प्रस्ताव देखें तो एकदम दौड़ के आएंगे मदद करने की। सर एक हम लोग का एक्सपीरियंस है, मामूरगंज इलाके में एक तालाब है, प्राचीन कुंड है, और उसका जिक्र भी है बचपन के पहले का जो खसरा खतौनी है। तो कई लोग मिलकर हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि उस कुंड को बचाया जाए। अचानक एक दिन उस पर चार दीवारी बनने लगती है, हाई कोर्ट में फिर केस डाला जाता है, हाई कोर्ट के से केस हम लोग जीत के आते हैं, और उसमें क्या पता चलता है कि अचानक लेकिन खसरा खतौनी में उसका एरिया 680 स्क्वायर कितना था एयर 680 एयर का एरिया अचानक 140 एयर हो जाता है। जो स्क्वायर कुंड था अचानक वो एल शेप का कुंड हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, अभी आपको मैंने दिखाया ब्रह्मकुंड जो कि कूड़े का ढेर था, जिसपे चारों तरफ अवैध निर्माण थे। उसमें हम कोई अवैध निर्माण नहीं हटा सके, जितना कुंड मिला उसी को बना दिया। दूसरा दिखाया रुद्रकुंड, जहाँ 5 साल हाईकोर्ट में लड़े, डिमोलिशन किया। तीसरा दिखाया जयकुंड, जहाँ पर वो नाग का दिखाया। आधा कुंड पर गाँव बढ़ गया था, उसको बड़ी मुश्किल से पीछे हटाया, पत्थर गोली चले, हमारे लोगों के सिर फूटे, पुलिस वालों के सिर फूटे। और जो मैं अकबरपुर संत रीठका की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वही घटना हुई जो आप कह, बगल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसने पूरे कुंड की बाउंड्री वॉल बनाई, एसडीएम की मिली भगत, खसरे खतौनी रिकॉर्ड में कुंड गायब हो गए। पर हमारे रिलीफ के लिए क्या था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड पुराने तो हैं। एचएफ ग्राउस नाम का एक अंग्रेज कलेक्टर मथुरा में हुआ है, जिसने रेस्टोरेशन के काम 1886 में किए थे। उसने किताब लिखी मथुरा में माया, उसमें अकबर का ताल नाम से उसके पर 6 पेज है फोटोग्राफ। तो हमने डीएम से कहा कि भाई जो चीज हिस्टोरिक है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कुंड सन 50 की दिशा में लौटाया जाए, तो ये कैसे दीवार पर? एसडीएम की मिली भगत को ऑपरेट ही नहीं कर रहा, अभी तक पूरी सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन ये पता चल गया है कि सारे फोर्ज डॉक्यूमेंट है। अब जब हमारे हाथ में सबूत लग जाता है तो हम भूत की तरह पीछे पड़ जाते हैं, चाहे कितने महीने लगे। अब वो पूरा है, उसको वापस करवाएंगे। जयकुंड में इसी तरह मैनिपुलेशन करके एक बहुत बड़ी जमीन जिसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 200 करोड़ होगी, उसको उन्होंने शमशान में कन्वर्ट कर दिया, शमशान कागजों में दर्ज कर दिया। सिर्फ पर्पस क्या था कि भविष्य में वहां पे दुकानें बाजार बन जाए। 5 साल लड़ाई लड़ने के बाद 4 दिन पहले वो शमशान निरस्त कराया और वो जयपुर हाईवे से लगी जमीन में। ये परसिस्टेंट लड़ाई लड़नी पड़ती है। हवाला की लड़ाई लड़ी थी जब 93 में 115 देश के मंत्री, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेट के खिलाफ। तो मेरे वकील राम जेठमलानी कहते थे, विनीत जिंदगी का अनुभव है, तुम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हमने कहा आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे, देखते भगवान को क्या मंजूर। आपको जानते इतिहास से करेंगे। न्यायपालिका से लड़ा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के घोटाले ज्यादा किए। एक वकील, एक पत्रकार, एक सांसद मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ के साथ में, अकेला लड़ा। 1.5 साल अंडरग्राउंड रहा, दफ्तर सील कर दिया, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट श्रीनगर में चलाई, कश्मीर में मुझे देश छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन आखिर में मैंने माफी नहीं मांगी कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहना पड़ा कि न्यायपालिका भ्रष्टाचार है, मौजूदा कानून उससे निपटने के लिए नाकाफी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास रेवेन्यू रिकॉर्ड और प्रमाण है तो आप लड़ाई में जुट जाइए। कोई वजह नहीं है कि जो आपको विजय ना मिले, 100% विजय मिलेगी, समय लगेगा। ठीक सर, तो इसमें कुछ सजेशन होगा तो आपसे लेंगे। जरूर। ठीक है, थैंक यू। प्रश्न पूछने के 2 कारण होते हैं, या तो लेक्चर इतना बोरिंग है जान छूटे और भागे, और ये इतना बढ़ जाए कि पूछने को बचा ही नहीं। तो आपको तय करना है कि क्या करना है। ये काशी में बहुत से कुंड यहाँ भी हैं जी, और ज्यादातर में कब्जा हो गया है, उनका रिकॉर्ड भी है जी। और एक ग्रंथ है जो काशी खंड के नाम जाना था, उसमें है जो कि काफी पुराना है। और नए में 500 साल पुराना एक मराठी किताब है, मराठी, जिसमें कि वो सब स्थान जो है बाकायदे लिस्टेड है। अगर कोई इस तरह का ब्रज फाउंडेशन जैसा काशी फाउंडेशन बने हैं तो हो सकता है कि भाई इससे मेहनत वर्क, हम जैसे आप जो कर रहे हैं वो मेहनत है। It's not one lifetime is probably insufficient, but still does it and one achieves quite a lot. I mean, lot. तो यहाँ पे भी उस तरह का कुछ आप मोटिवेट करें अपने यंगर लोगों को, जो कि एक YouTube तो बच्चों आप लोग देखते होंगे ना, एक्सेस करते होंगे। एक हमने सीरियल बनाया है, आओ सजाएं कान्हा का ब्रज। तो YouTube पे जाएंगे आप तो youtube.com/ब्रज फाउंडेशन में ये आपको सीरियल मिलेगा। 20 एपिसोड है। पहला और दूसरा एपिसोड आवर अप्रोच टू ब्रज रेस्टोरेशन, जो आपके काम आएगा वाराणसी के बारे में। आज ही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नारा दिया है,
आओ सजाएं भोले की काशी, जैसा आओ सजाएं खाना कर दे। और काफी संस्थान हमारे साथ जुड़ी हैं। अगर IIT BHU इंटरेस्ट लेता है तो पहला काम पांडे जी ये करना है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन उन कुंडों का है उसको आप तैयार करा लीजिए। एक लोकल वकील से पिटीशन तैयार करा लीजिए। मैं तैयार हूँ, क्योंकि विनीत नारायण के नाम से सुप्रीम कोर्ट में जरा सम्मानीय तरीके से सुन ली जाती है बात, तो मैं उस पिटिशनर बनूंगा। IIT के स्टूडेंट पिटिशनर बने, आप लोग बने, शहर के लोग बने, और एक हम साझी पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में करें कि भाई आप ही के आदेश की धज्जी उड़ाई जा रही है और ये कुंड है, और फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री स्तर पर बात की जाएगी। एक लंबा अभियान चलेगा 1.5 साल का, और सफलता मिलेगी, कुंड वापस आएंगे। और कोई प्रश्न? सस्टेनेबिलिटी के लिए आप क्या करते हैं? जैसे आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया और उसका मेंटेनेंस होता रहे और उसमें जो लगना वाला व्यय है वो सब उसकी पूर्ति होती रहे, ताकि वो जिस शेप में आप लाएं उसमें अगर फर्दर ग्रोथ न रहे तो जिस स्टेज पे आपने छोड़ा उसी स्टेज में बढ़ता है। इसके लिए देखिए, ये बड़ा टेढ़ा सवाल है, इसका जवाब पर्यटन विभाग के पास तो नहीं है, क्योंकि पर्यटन विभाग के पास कोई बजट ही नहीं है, तो वो जो बनाते हैं उसको उपेक्षित कर देते हैं और बाद में वो नष्ट कर देते हैं। इस समस्या को समझते हुए हमने जो आपको दिखाया कैंप ऑफिस मॉडल, कि हमारी हर साइट पर एक कैंप ऑफिस रहता है, खर्चा करीब 30,000 रुपये एवरेज आता है। 20 से 30,000 रुपये हर साइट का मेंटेनेंस मंथली खर्चा आता है, माली, चौकीदार, बिजली, सफाई, लगातार सब। हमने एक स्कीम चलाई है, शुरू करी है, अभी इसको पॉपुलर करना है, आपको भी सुझाव दे देते हैं। एडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट स्कीम। अब 3 करोड़ रुपया लगा कुंड में, वो तो दे दिया किसी XYZ कॉर्पोरेट हाउस ने। हर आदमी की हैसियत तो नहीं है 3 करोड़ देने की, लेकिन 1,000 रुपये देने की हैसियत तो बहुत लोगों की, बनारस शहर में बहुत लोगों की होगी, 1,000 महीना। आप 30 लोगों की, 20 लोगों की कमेटी बना दीजिए, लोलार कुंड संरक्षण समिति। ये 21 सदस्य 1,000 रुपये महीना देंगे, इससे बिजली, पानी, पेंटिंग, सफाई सब काम चलेगा। ये अडॉप्टेड मॉन्यूमेंट स्कीम से काम चलेगा। इस स्कीम को आगे ले जाना है देश में। आप आते हैं मंदिरों में, आप संकट मोचन मंदिर में लाखों रुपए चढ़ा देते हैं भोलेनाथ को, भोलेनाथ उससे प्रसन्न नहीं हो रहे, वहां भी चढ़ाएंगे। आप उससे कुछ सकारात्मक कार्य कीजिए, भगवान के धाम की सेवा कीजिए। आप अब घाट बनाएंगे, हम लोग मेंटेनेंस का जिम्मा लेने जा रहे हैं, अगर हमको कॉर्पोरेट सपोर्ट है तो हमारे आदमी सफाई किया करेंगे इंटरसेक्ट का, लेकिन कितने दिन, साल, 2 साल, 5 साल। पर अगर बनारस के भक्तों में ये बात आ जाए कि साहब हम 500-500 रुपये महीना देंगे और हम 50 आदमियों का संगठन है और हम लोग, तो उससे तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आएगा कि ये जो आदमी 1,000 दे रहा है इंदौर में बैठा हुआ, वो वहां से टेलीफोन करेगा जयकुंड के चौकीदार को, हाँ भाई राम सिंह, पेड़ों को पानी वानी दे रहे हो कि नहीं, गेट वेट बंद कराए, पेड़ पौधे सूख तो नहीं रहे, कुंड में कितना पानी है, मेरी भाभी आ रही है कल, उन्हें ठीक से दर्शन करा देना। अब 20 उसके मालिक हो गए, वरना एक ब्रज फाउंडेशन मालिक होती। ब्रज फाउंडेशन का जो ऑफिसर है वो हर जगह मेंटेन नहीं कर पाता, ध्यान नहीं। अब वो जो 20 सदस्य हैं इंदौर के, इंदौर व्यापार मंडल के 20 सदस्य, वो 20 की नाक में दम किए रहेंगे फोन, और जब आएंगे जब विजिट करेंगे और सबसे बोलेंगे मैं मेंटेन कर रहा हूँ, वो ये भूल जाएंगे कि 3 करोड़ किसी और ने लगाए थे, मेरा 1,000 रुपये महीना लग रहा है। ये प्रैक्टिकल मॉडल, तो इसको हमको बढ़ाना है, पार्टिसिपेशन। और कोई प्रश्न? एक बार छोटी सी झलकी, सिंघल साहब जी देर में आए हैं, जो मैंने निमंत्रण दिया है, सिंघल साहब जी एक मैंने निमंत्रण दिया है कि रुद्रकुंड अगले महीने तैयार हो जाएगा, गोवर्धन के पास भगवान शिव की महालीला चली है, उसके उद्घाटन के लिए मैं निमंत्रण देने आया हूँ काशी विश्वनाथ जी को। जैसे ब्रह्मकुंड का उद्घाटन करने गोविंद देव जयपुर से आए थे, तो जब हमने महाराजा जयपुर से परमिशन मांगी यूनिवर्सिटी पैलेस पे, बोले इसका मतलब गोविंद देव जी को ले जाएंगे। 250 साल पहले गोविंद देव जी औरंगजेब के टाइम में जयपुर गए थे, तो हमने कहा नहीं हम ले जाएंगे, वो लौट आएंगे अगले दिन। तो बड़े घबरा गए, बड़ी मुश्किल से परमिशन ली, पुलिस प्रोटेक्शन में उनका सचल विग्रह और 500 लोग जयपुर के सब बिल्डर और हीरा व्यापारी और साधारण भक्त और पत्रकार और शिक्षक, सब 500 लोग बारात लेके आए, 2 दिन का उत्सव मना। अभी हम इन्विटेशन देके जा रहे हैं कि यहाँ से स्पेशल ट्रेन आएगी काशी से मथुरा, इसमें आप सब लोग आए रुद्रकुंड का उद्घाटन करने के लिए, काशी विश्वनाथ जी को साथ लेते हुए, और उस कैसा आयोजन होगा उसकी झलकी एक स्टार न्यूज का एक रिपोर्ट है वो दिखा देते हैं। माइक तो होगा नहीं, अरे ये यूज ये देख लीजिए इसके बाद।
जयपुर से उन्होंने अपने मां मथुरा और वृंदावन तक किया था। करीब 250 साल बाद जयपुर के श्री राधा गोविंद जी अपने गुरु का शुरू था। इस यात्रा में उनके साथ उनके सिवाय समेत हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। तो गोविंद की इस अनोखी यात्रा में आप भी शामिल हुए। खुशी से झूम उठे हैं ठाकुर जी के भक्त। राधा गोविंद जी के आंगन में गूंज उठे हैं ढोल नगाड़े। सदियों बाद अपने घर लौटे हैं भगवान। वृंदावन के जयपुर मंदिर को फिर मिला है भगवान की मेजबानी का सौभाग्य। लीजिए आ गई भगवान राधा गोविंद जी की पालकी। भक्तों ने कंधों पर उठा रखा है अपने आराध्य को। अब ठाकुर जी निकलेंगे भक्तों का हाल जाने। वो करेंगे पूरी मथुरा का भ्रमण, देंगे भक्तों को दर्शन, जानेंगे भक्तों का हाल। आखिर तकरीबन 3 सदियों बाद घर जो लौटे हैं राधा स्वामी भगवान। आप घर घर लीजिए भगवान राधा गोविंद जी के दर्शन। कभी वृंदावन के किसी जयपुर मंदिर में बसते थे भगवान, लेकिन हमलावरों के डर से उनकी मूल प्रतिमा को भक्तों ने जयपुर भेज दिया था। तब से वही पूजित है भगवान। लेकिन आज वो अपने धाम में फिर से चित्र रूप में लौटे हैं। ठाकुर राधा गोविंद देव जी की ये यात्रा पहली बार जयपुर से मथुरा वृंदावन आई है। बड़े खास काम से यहाँ पधारे हैं भगवान। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह पर उनके दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में जुट गए भक्त। भाव विभोर भक्त यात्रा के साथ ठाकुर जी की भक्ति में खूब झूमे नाचे। भोर से सांझ तक भगवान अपने भक्तों को यूं ही दर्शन देते रहे। आखिरकार आ गया वो स्थान जिसके लिए खास तौर पर यहाँ आए थे भगवान। वृंदावन के ब्रह्मकुंड पहुंचते ही भक्तों ने ठाकुर जी का फूलों की वर्षा करके जोरदार स्वागत किया। राधा गोविंद जी यहाँ करके आए हैं पौराणिक ब्रह्मकुंड का लोकार्पण। वर्षों से उपेक्षित पड़े इस कुंड का ब्रज फाउंडेशन ने जीर्णोद्धार करवाया है। श्री जी की कृपा से, राधा गोविंद देव की कृपा से ब्रज फाउंडेशन को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2.5 वर्ष के सतत प्रयास के बाद आज इसका एक सुंदर रूप निकल कर आया है। दरअसल ये वही स्थान है जहाँ कभी कान्हा ने ब्रह्मा जी को अपनी ही रची माया से मुक्त किया था। जो भागवत में दशम स्कंद में 14वां अध्याय है, गोपाल की स्तुति इसी स्थल पर किया था। उन्होंने क्षमा मांगा और उन्होंने कहा कि पश्येश में नारे बदंत आते परात्मय त्वयि माया माल। मैंने आप मायाओं के स्वामी, आपने माया का प्रयोग किया, आप हमें क्षमा करें। मीराबाई और चैतन्य से लेकर 6 परम भक्त गोस्वामियों तक की कृष्ण भक्ति का साक्षी रहा है ये कुंड। लिहाजा दोबारा से बनाए गए इस पौराणिक कुंड में इन कृष्ण भक्तों की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है। ठाकुर जी की ओर से लोकार्पण की सनद है, लिहाजा इसे पत्थर पर खुदवाया गया है। कुंड के बीचों बीच विराजे हैं आर्य प्रजापति और चारों ओर दीवारों पर रची है स्तुतियां। गोपियों का उत्साह भी इस मौके पर खूब दिखा। मैं ये प्रोग्राम करके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ कि मैं ये सब कुछ भगवान के लिए कर रही हूँ। वृंदावन में आज तक ऐसे प्रोग्राम कोई भी नहीं हुए थे जो ब्रह्मा जी के नाम से हुआ हो। इस मौके पर देश विदेश के भक्त यहाँ इकट्ठा हुए। सभी को ठाकुर जी की
जी ने हमें शाम तक से सराबोर कर दिया। मथुरा से नितिन गौतम के साथ स्टार न्यूज़ रिपोर्ट। यदि कोई और प्रश्न नहीं हो तो संदीप जी पर प्रश्न। तो फिर मैं प्रोफेसर राजेश सहगल हमारे निदेशक से निवेदन करूंगा अध्यक्षीय संबोधन के लिए। प्रोफेसर, पहले से तय एक कार्यक्रम था, इसके कारण आने में देरी हुई क्योंकि उसमें बाहर से लोग आए थे। जितना मैं आपके काम को पहले से जानता हूं और अभी सुनने के बाद ये बहुत मुझे लगता है अच्छा मौका है हम सबके लिए कि हम अपने काशी के लिए काम करें और इसमें जन भागीदारी को सुनिश्चित करें। ये देख के मेरे मन में एक पुरानी चीज याद आई। एक बहुत बड़ा मूवमेंट महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ था। उसका नाम श्री की नाव, श्री का ठेला, मैं नाम भूल रहा हूँ जिन्होंने उसको शुरू किया था, पर उन्होंने उसमें अपने रोज की जिंदगी से भगवान को जोड़ा था। तो उदाहरण के लिए जो ठेला लगा के फल बेचते हैं वो लोग उसमें जैसे शामिल हुए, तरह तरह के लोग शामिल हुए। तो उन्होंने कहा कि रोज श्री का ठेला निकलेगा ना, श्री का ठेला भी फल ही बेच रहा है और आप सब लोगों में से एक व्यक्ति रोज श्री का ठेला निकालेगा। उसका क्या अर्थ है? आपका ही अपना ठेला श्री का ठेला हो जाएगा। श्री के ठेले का क्या अर्थ है? इसमें नाप तौर बिल्कुल सही होगा, कोई मिलावट नहीं होगी, फलों पे कोई रंग नहीं छिड़का जाएगा। मैं आज के माहौल के हिसाब किसी से ज्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। और ये चीज उन्होंने हर क्षेत्र में की। अब अगर 100 लोग वहां पर हैं तो 100 दिन में एक बार नंबर आएगा, तो साल में 3 बार आपका ठेला श्री का ठेला बन जाएगा। और उसमें आपको ये सुनिश्चित करना है कि इसमें कहीं कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, सब चीज अच्छे से की जाएगी। और इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका प्रभाव ये पड़ा कि वो 100 दिन में एक दिन श्री का ठेला बनता है, बाकी 99 दिन वही सोच के जो अपना रोज का काम है वो अच्छे से करता है। तो वो जो शक्ति है, वो शक्ति हमारे जीने से जुड़ गई। तो इस प्रकार का जब हम काम करें, उसमें वो लोगों में प्रेरणा आ जाए और प्रेरणा को ठोस रूप देने के लिए इस प्रकार की परंपरा या प्रथाएं शुरू हों जो हमें सत्य और अच्छे की ओर ले जाएं। तो इसका ख्याल मुझे आया। और यहाँ पर तो जो बात हम कर रहे हैं काशी की, ये तो सबका अपना ही भला है, सबका भला है। और इसमें आपके अनुभव से बहुत कुछ सीखना चाहेंगे। आप जो योजना बना रहे हैं उसको भी जब वो बन जाए या उसके दौरान जो भी योगदान हम कर सकें उसको हम करने को तैयार हैं। और एक संस्था के रूप में, एक शिक्षा संस्था जो अपने नगर से, अपने क्षेत्र से जुड़े और अपनी जो तकनीकी ज्ञान है उसको उसमें लगा सके और अपनी युवा शक्ति की जो उत्साह है उसके माध्यम से आगे बढ़ सके, काम कर सके। और इसमें आपके साथ मुझे बहुत सारी संभावनाएं दिखती हैं और इसको हम जरूर आगे लेके जाएंगे। मैं निदेशक महोदय से निवेदन करूंगा कि श्री विनीत नारायण जी को मोमेंटो प्रदान कर
सम्मानित करें। श्री विनीत नारायण जी को मैं इंस्टीट्यूट लेक्चर सीरीज और संस्थान की ओर सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। आपने इस सीरीज में एक नया डायमेंशन जोड़ दिया। पहले ये सीरीज आरंभ हुआ था रमन मेगासी से अवार्डी जल पुरुष श्री राजेंद्र सिंह जी के द्वारा, जिन्होंने भी जल कुंडों का और नदियों का संवर्धन किया था, संरक्षण किया था और पुनर्जीवित किया था। आपने फिर उसे एक बार हम लोगों के बीच उन सारे पुनरुद्धार की प्रक्रिया को सामने रखा और शायद प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स के रूप में आप लोग जो काम कर रहे हैं और जिस तरह हेड मेटलर्जी हमारे सामने बैठे हैं, शायद आपके सजेशन को कि मेटलर्जी वाले आपके आयरन शीट के टेस्टिंग करके देखें। जिस बगल में धनंजय सर है वो भी आपको बता सकते हैं 144 का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। आपने कई विभागों को अपने कार्यों के समय चुना। माइनिंग इंजीनियर होने के कारण अवैध माइनिंग के जिम्मेदार में पा रहा था खुद को कि माइंस हॉट प्रॉपर्टी हो ही गई है और प्रलोभन छूट नहीं पा रहा है। 19वीं सदी की शुरुआत में जिस तरह प्राइवेटाइजेशन हुआ था तो हमने एक झरिया, उसे हम लोग स्लॉटर माइनिंग कहा करते थे। 1925 के आसपास झरिया में जो आग लगा वो आज तक चल रही है और करीब करीब स्लॉटर माइनिंग फिर से शुरू होगी। अगर आपके साथ, जैसा आप बता रहे हैं कि एसडीएम तक जब एक कॉलेज वाले के साथ मिल जाता है तो माइनिंग में तो पैसे की अकूत संभावना है। उसके चलते जो आपके एक शेर आपने बहुत सारे कहे, उसमें एक मैं भी कह दूं कि सोने की कैंची लाओ तो मुंसिफ के लब खुले, कातिल ने होठ सी दिए चांदी के तार से। ये चांदी के ऊपर जब तक सोना हम ले न पाए तब तक के इन संस्थाओं के लिए चुनौती बन पड़ी है। कचहरी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है और आपने कचहरी को जीता। ये संदेश देकर आप फिर से न्याय व्यवस्था पर और भारतीय व्यवस्था पर हम सबका विश्वास स्थापित करते हैं। फिर यहाँ पर अमौसा का मेला से कोट करूंगा, कैलाश गौतम जी कहते हैं, कचहरी तो बेवा का तन देखती है, कहाँ से खुलेगी बटन देखती है। इतनी निर्मम संस्था को भी आप पराजित करने का हिम्मत रखे। ये मेरे ख्याल से प्रदीप जी और अन्य मेरे मित्र जो इस प्रक्रिया में जुड़े हैं उनके लिए हौसला अफजाई करेगा। मेरे युवा मित्रों, खास करके सारा जो व्याख्यान श्रृंखला है वो आपको समर्पित है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप विनीत नारायण जी की शख्सियत से और ब्रथ फाउंडेशन से और एग्जाम्पल्स जो उन्होंने सेट किए हैं उससे अब कम से कम व्यवस्थाएं पुनर्निर्मित की जा सकती हैं, परंपराओं को पुनः पुष्ट किया जा सकता है, ऐसा संदेश लेकर यहाँ से वापस होंगे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे निदेशक महोदय का, इतने व्यस्त समय के बीच वो रहे। प्रोफेसर कमलशील, रेक्टर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारे बीच हैं, उन्हें भी तमाम व्यस्तताओं के बीच वो हमारे बीच हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रोफेसर रामजी अग्रवाल, देव भट्टाचार्य, संजय कुमार, फिर उसके बाद अपने परिवार के सब वरिष्ठ सदस्यों से प्रोफेसर कौशल श्रीवास्तव जी, मेंबर पीओजी, प्रोफेसर धनंजय पांडे, प्रोफेसर हादी हसन, चेयरमैन ग्रीन कमेटी, प्रोफेसर अनिल अग्रवाल, प्रोफेसर मंडल, और इन सब के बाद मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद हर बार देता हूँ प्रोफेसर एस के सिन्हा को, बिना उनके सक्रिय सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। इतने शॉर्ट नोटिसेस में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकअप हमें दिए हैं कि हम लोग उनके भरोसे कोई भी कमिटमेंट करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। मेरे ख्याल से मुझे लगता है केमिकल इज सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी, तो उसमें चिंता नहीं है हम लोग को, उससे कंटिजेंसी में मेंटेन हो जाएगा। और बीइंग रिसोर्स एंड अलुमनाई के बाद मैं आखिरी में इसलिए आ रहा हूँ कि इनका सजेशन था कि आप प्री टॉक टी रखिए, उस पे स्पीकर से एक तो कम्युनिकेशन हो जाता है और उसके बाद फिर लेक्चर हो तो सारे लोग एक टाइम के साथ शुरू हो सकता है। ऐसा इन्होंने आईआईटी कानपुर के अनुभव के ऊपर कहा, तो पहली बार हमने इसको एक्सपेरिमेंट किया और
पता नहीं सफल है कि नहीं, प्रदीप सिरे ला रहे हैं किस तरह की बात किया जाए, धीरे धीरे सफल होगा, इसी उम्मीद से हम लोग चल रहे हैं। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से शुक्रिया। और दिसंबर की इस सर्दी में जितने लोग हैं वो सब एक एक व्यक्ति 10-10 के बराबर है। आपकी दृढ़ इच्छाओं के लिए मैं मानता हूं कि जैसे वसंत आएगा तो हॉल भर जाएगा, और अगली बार जब विनीत जी आएंगे तो इनको बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए। एक मैं सूचना देना चाहता हूँ कि विनीत जी ने हमारे चेयरमैन ग्रीन कमेटी को ये कहा है कि इस लेक्चर के बाद कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए दुर्गाकुंड का दौरा करेंगे, और अगर हो सका तो ग्रीन कमेटी चेयरमैन ने कहा है कि एग्जीक्यूशन शुरू करेंगे, उनका निर्देशन रहेगा, और यहाँ की टीम का हम लोगों को दुर्गाकुंड में हम जो कुछ कर पाए, क्योंकि सबसे नियरेस्ट वाटर बॉडी वही है। इस संकल्प के साथ आप सबके आशीर्वाद के साथ हमें लगता है यह इंस्टीट्यूट लेक्चर सीरीज हर बार नए आयाम लेकर आपके सामने आएगा और आपको प्रेरित करने की कोशिश करता रहेगा। धन्यवाद आप सब।